On behalf of Tally Solutions, myself Sanjay Shukla, I welcome you all to this CA Connect session, which is on job costing and project costing, which will be configurable in the Tally Prime Release 2.0, which is our latest offering, which is latest offerings from Tally Solutions. With me here today is Mr. Rajendra. He is from the only TIL, which is the Registered Tally Institute of Learning from Kolhapur City, and he's been dedicatedly working with Tally since 2004. He himself is MCOM and MPhil in costing, and now he is pursuing his PhD. He has more than 20 years of experience in various projects, which are included CA firm as an article, or the ITT trainer in the ICI branch of Kolhapur, and he's been working with Tally as a developer for the last 5 years. And he also has got one Telegram channel wherein he's been serving more than 400 plus chartered accountants all over India. And now he's also providing outside trainings to countries like Morocco, GCC, Zambia, and all other. So with this, I invite Rajendra sir onto the dais and take over and provide us the knowledge transfer of project costing. Over to you, sir. Thank you, sir. Thank you for that nice introduction. The session regarding job costing and project costing is mostly demanded by builders and job costing persons like industrial. Those are involved in manufacturing. And that session is also demanded in our regional Marathi language. But we are just planning to deliver because this session is conducted for all peoples all over India. So I am conducting this session in Hindi as well as English so that many people can understand that. And with a simple note, I'm just sharing here one Excel file where I am taking one scenario first. And that scenario, how we are going to introduce in Tally, that data I am going to show here. So सब लोगों को मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे हम एक सिस्टम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट कॉस्टिंग हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसका जॉब कॉस्टिंग कैसे कर सकते हैं. तो एक दो अलग अलग कंसेप्ट हम एक सेशन में देख रहे हैं. सो आफ्टर दैट सेशन we can move on FAQs. Okay, so thanks for that. Just this is the Excel file. I hope this is visible for all. यहाँ पे मैंने एक सेशन एक सिनेरियो ऐसा लिया हुआ है कि जिसमें देखो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग क्या होता है और जॉब कॉस्टिंग क्या होता है. पहले इसको 1-2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ऐसा है ना कि जिसमें एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है. जैसे कोई बिल्डर है जो अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है स्टार्ट टू एंड, 1 साल 2 साल 3 साल चलता रहेगा और इसके ऊपर वो खर्चा कर रहा है और इसके बाद इसको चाहिए कि कौन से साइट पे कौन से फ्लैट के लिए क्या खर्चा हुआ. ओके, अब हम एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में बोल रहे हैं. हम रिसीवेबल्स और जो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स होता है इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं. ओके, दैट इज रिलेटेड विथ कॉस्टिंग. ये सेशन इसके रिलेटेड है. इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कॉस्टिंग. अब एक जॉब कॉस्टिंग कंसेप्ट होता है जिसको टैली में हम कॉस्ट ट्रैकिंग बोलते हैं. ठीक है, तो ट्रैकिंग मींस क्या होता है. वहां पे मान लो कोई मटेरियल है, वो मटेरियल 100 बार अंदर आके बाहर जा रहा है, गेट के अंदर बाहर अंदर बाहर, और अलग अलग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है और उसको हमेशा उसी आइटम की मुझे 100 20 25 क्वांटिटी की ऐसे ऑर्डर आ रही है और मुझे ऐसे चाहिए कि उसी आइटम की उस ऑर्डर की कॉस्ट क्या है. जैसे आज की डेट में हम अभी गणपति का हमने एक हमारा एक ये हुआ फंक्शन हुआ. तो गणपति में मान लो कोई मैन्युफैक्चर है, अब उसको इस सीजन में हमेशा गणेश की जो मूर्ति होती है उसी की ऑर्डर आने वाली है. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर दैट मैनेजमेंट, व्हाट इज द बिजनेस प्रॉफिट, व्हाटएवर द प्रॉफिट और द कॉस्ट इज ऑकर्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर. तो ऐसे आइटम तो नहीं बना सकते हम कि एक्स पार्टी का गणेश मूर्ति, वाई पार्टी का गणेश मूर्ति, इतने आइटम तो नहीं बनाएंगे.
So this is called as cost tracking, or you can say that is a job. So first हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्टिंग. अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग की डिमांड कहाँ पे होती है? प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होता है बिल्डर्स या फिर जो एक ऑर्डर बेस्ड काम करते हैं. जैसे मान लो कोई एयरपोर्ट मुझे रिपेयर करना है, इंडियन मान लो कोल्हापुर का एयरपोर्ट है, तो इसके ऊपर काम चल रहा है मेरा, और कभी मैं रोड का सपोर्ट कर रहा हूँ, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा हूँ, कभी फैब्रिकेशन काम कर रहा हूँ, तो अलग अलग काम चल रहे मेरे. तो ये सबका कॉन्फ़िगरेशन मुझे देखना है, और मुझे वो प्रॉफिट भी चाहिए कि क्योंकि उसी टाइम में और एक दूसरे सिटी का एयरपोर्ट भी काम कर रहा हूँ. ओके, तो नॉर्मली पीपल्स यहाँ पे क्या करते हैं पहले बताता हूँ. नॉर्मली लोग कॉस्ट सेंटर्स यूज करते हैं. ओके, कॉस्ट सेंटर्स इज ऑल्सो बेस्ट यूसेज ऑफ द टैली. इसके अंदर भी आपको अच्छे से रिपोर्ट मिलेंगी, लेकिन कॉस्ट सेंटर को थोड़ा एडवांस करेंगे हम अभी. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वी आर मूविंग ऑन दैट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग. सो ये एग्जाम्पल देख लो. एग्जाम्पल बहुत सिंपल मैंने बनाया है, कोई भी इसमें जीएसटी कुछ नहीं लिया हुआ है. सिंपल एग्जाम्पल है. एक बिल्डर है और ये बिल्डर ने मटेरियल परचेस किया हुआ है. ठीक है, अब बिल्डर का एग्जांपल है, आप लोग किसी में भी इंप्लीमेंट कर लो इसको. अब एग्जांपल ऐसा है कि सीमेंट और स्टील, ये दो चीज हमने परचेस की है. सीमेंट और स्टील मैंने बहुत सारे आइटम नहीं लिए, यहाँ पे 2 ही आइटम लिए, और ये दो का एक क्वांटिटी डाला हुआ है यहाँ पे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट. कोई जीएसटी नहीं ले रहा हूं मैं यहाँ पे. अब ये बिल्डर क्या कर रहा है, 2-3 अलग अलग साइट्स पे काम कर रहा है. जैसे देखो यहाँ पे कोल्हापुर में काम कर रहा है, पूना में काम कर रहा है और सातारा में काम कर रहा है. अब ये बंदा करेगा क्या? 2 तरीके से काम होता है. एक, मटेरियल सेंट्रलाइज्ड परचेस होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. कई सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फैक्ट्री से निकलेंगे, सप्लायर की फैक्ट्री से या प्रीमाइसेस से, और सीधे वो चले जाएंगे आपकी साइट पर. जैसे सातारा में मेरा साइट चल रहा है और मेरा सप्लायर कराड़ में है, तो मैं मटेरियल कराड़ से सीधा सातारा भेज सकता हूँ, ना कि मैं उसको कराड़ से पूना लेके आऊंगा और पूना से सातारा भेजूंगा. ऐसे नहीं होगा. तो ये सभी सिनेरियो में यहाँ पे देख रहे हैं. तो पहली एंट्री ऐसी है कि जिसमें मैंने मटेरियल परचेस किया. इट इज सिंपल एंट्री, नॉर्मली हम करते हैं इसको. फिर मैंने, उस बिल्डर ने क्या किया, उस मटेरियल को ट्रांसफर भी किया. ठीक है, अब मटेरियल ट्रांसफर हुआ साइट वाइज. जैसे किसी साइट पे कोई मटेरियल दिया, किसी साइट पे कोई मटेरियल दिया, क्वांटिटी अलग, रेट अलग. नॉर्मली कॉस्टिंग के लिए रेट परचेस कॉस्ट ही पकड़ा जाता है. सो उसके हिसाब से उसने मटेरियल ट्रांसफर किया. ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ खर्चा भी हुआ. जैसे कि वो साइट पे मान लो कोई वॉचमैन है या कोई लेबर अपना बैठा हुआ है दिन भर, सुपरवाइजर है, तो इन लोगों की सैलरीज होती है. तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि जिसमें वॉचमैन की सैलरी पे होगी साइट वाइज. फिर हो सकता है कि मैंने वहां पे स्लैब डालने वाले या जो भी बंदे रहते हैं प्रॉपरली लेबर वर्क, मटेरियल मूवमेंट करने के लिए, इन सब का लेबर चार्जेस पे किया. ओके, नॉर्मली एक दिन को सबको बुला के लेबर पे किया जाता है. और इसके बाद क्या हुआ कि वो फ्लैट मैंने बेच दी. जो भी वो साइट था, एक एग्जांपल ये है कि वो पूरा साइट बेच दिया या उसका सेल आउट हो गया साइट वाइज. अब इतना सिंपल सिनेरियो टैली में कैसे करते हैं हम इसको देखते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी खोली है, जय विजय बिल्डर्स एज अ डेमो. और इसके अंदर पहले क्या करना है आपको, F11 में जाके, F11 में जाके आपको यहाँ पे ये जॉब कॉस्टिंग ऑन करना है. देखो यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग अलग है और कॉस्ट ट्रैकिंग अलग है. ओके, जॉब कॉस्टिंग मीन्स यू आर टेकिंग वन जॉब and that job is going continuously. You can say it is a project. Okay, तो मैंने कोई ऑन नहीं किया, बाकी फीचर्स जीएसटी पे ऑफ है, सिर्फ जॉब कॉस्टिंग ऑन किया हुआ है. इसके बाद इसको सेव किया. अब मैं पूरा डे बुक दिखा देता हूँ, एक एक एंट्री दिखा देता हूँ जो हमने यहाँ पे एक्सेल में देखी हुई है. ठीक है, तो डिस्प्ले डे बुक फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल और 31 मार्च. तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें एक 1 अप्रैल के पूरा एग्जाम्पल किया हुआ है और दूसरा है 2 अप्रैल को. ठीक है, सो मैं पहले सिनेरियो, इसी सिनेरियो में मैंने 2 अलग सिस्टम दिखाई है. पहले मैं 1 अप्रैल के ट्रांजैक्शन दिखा देता हूं. ओके, सो पहले क्या हुआ, यहाँ पे मटेरियल परचेस हुआ. अब थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने एंट्री डाल के रखी है, जिसमें कोई सेटिंग ज्यादा नहीं है. देखो यहाँ पे पार्टी है सनरी क्रिएटर्स के अंदर, ये नॉर्मल है, इसमें कोई सेटिंग्स नहीं है. ठीक है,
बाद में हमने यहाँ पे सीमेंट नाम का एक आइटम बनाया, ठीक है, यहाँ पे भी कोई कॉन्फ़िगरेशंस एडिशनल नहीं है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टी लोकेशंस ऑन किए हैं, उसको बोलते हैं मल्टी गोडाउन, ठीक है। अब गोडाउन कैसे क्रिएट करना है कि इन्वेंट्री इन्फो जैसे हम ERP में करते थे और गोडाउन क्रिएट, वैसे प्राइम में जाके आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ पे गोडाउन क्रिएट करनी है इस तरीके से। अब मेन जो कॉन्फ़िगरेशन है तो यही पे है, जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है ये इसी जगह पे है। देखो मैं यहाँ पे एक लोकेशन ओपन करके बताता हूँ, ये तो मेरा मेन लोकेशन हुआ। मेन लोकेशन को मैंने सिंपल से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ हमने यहाँ पे 500 बैग्स परचेस किया हुआ है, 300 रुपीज पर बैग। फिर परचेस का लेजर ओपन किया हुआ है, परचेस ऑफ सीमेंट। इसको हमने क्या सेटअप किया हुआ है, कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल है क्या नहीं, बस जो नॉर्मली हम करते हैं उसी तरीके से, ठीक है। सेकंड, अगेन वही स्टील आइटम क्रिएट किया हुआ है मेन लोकेशन पे। मेन लोकेशन में गोडाउन में कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं है और इसका परचेस है मेरा परचेस ऑफ स्टील। ओके, परचेस ऑफ स्टील में भी हमने कॉस्ट सेंटर्स ऑन किए हैं। कंप्लीट, एक सिंपल स्ट्रक्चर हुआ जिसमें कोई ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं। तो पहला एंट्री मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब कोई बंदा जो पुराना टैली यूज कर रहा है, ओके, जैसे टैली जो विदाउट जॉब कॉस्टिंग है, तो मे बी पॉसिबल दैट उसने सिर्फ कॉस्ट सेंटर ऑन करके रखे हैं। तो इसमें एक एडिशनल सेटिंग है, मैं वो दिखा देता हूँ क्या सेटिंग है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप गोडाउन क्रिएट करोगे, मैं अल्टर में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे गोडाउन, जैसे मान लो ये मेन लोकेशन पे तो कोई सेटिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं पूना ले लेता हूँ। तो क्या किया यहाँ पे आप देख लो, पहले पूना मैंने स्टॉक बोला हुआ है, पूना स्टॉक, क्योंकि पुणे साइड पे जो स्टॉक जाके रहेगा मेरा वो मुझे पता चलना चाहिए। और इसको मैंने बोला है अलाउ स्टोरेज, यस ऑब्वियसली मुझे स्टोरेज चाहिए। और यहाँ पे मैंने बोला हुआ है कि सेट जॉब ऑब्लिक प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देखो, इसको जॉब कॉस्टिंग बोलो या प्रोजेक्ट कॉस्टिंग बोलो, टैली दोनों एक ही बोलता है कि प्रोजेक्ट कॉस्टिंग आपको चाहिए क्या उसका, अगर चाहिए तो कौन सी साइट के लिए चाहिए। अब ये जो होती है ना साइट, ये होती है आपके कॉस्ट सेंटर। ध्यान रखो, नॉर्मली आप जब कॉस्ट सेंटर बनाते हो, देखो मैंने कंट्रोल एंटर किया है, कॉस्ट सेंटर अल्टरेशन। नॉर्मली आप कॉस्ट सेंटर बनाते हो तो कैसे बनाते हैं हम, कॉस्ट सेंटर का नाम लिया, उसकी कैटेगरी डाल दी यहाँ पे, ओके। लेकिन इसके ऊपर F12 दबाओ, F12, और यहाँ पे इसको एक ऑप्शन आएगा जॉब कॉस्टिंग ऑन करना है क्या, यहाँ पे देखो। और ये ऑप्शन कब आएगा, जब आपने F11 के ऊपर जॉब कॉस्टिंग को ऑन किया है, तभी ये ऑप्शन आने वाला है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को बोला कि ये यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग, यस, कोई ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। गोडाउन के लिए बोल दिया हमने पूना स्टॉक इज कोरिलेटेड विद पूना साइट, पुणे साइट जो है उसको इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। वैसे देखो सातारा साइट, इट इज कनेक्टेड विद सातारा साइट, एंड व्हाट इज सातारा साइट और सातारा प्रोजेक्ट, इट इज कॉस्ट सेंटर। अब ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि कॉस्ट सेंटर और गोडाउन इंटरलिंक कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, इन्वेंट्री एंट्रीज में कॉस्ट सेंटर नहीं चलेगा। और गोडाउन इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एंट्रीज, वो अकाउंट्स के लिए नहीं यूजफुल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को गोडाउन के साथ मैप कर दिया, मींस लोकेशन या प्रोजेक्ट बोलो इसको, इसको हमने मैप कर दिया इन्वेंट्री के गोडाउन के साथ। ओके, यहां तक सेटिंग हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट मेन सेटिंग इतना ही है, बस। अब एंट्री देखो, और थोड़ा एंट्री लेवल का एक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। डिस्प्ले डे बुक 1 अप्रैल से 1 अप्रैल, ये अपना परचेस हो गया। अब सेकंड एंट्री क्या है अपना, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू वेरियस लोकेशंस। ओके, अब बिल्डर लोगों को खास करके मैं बताता हूँ यहाँ पे, या फिर जो भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, पहले तो आप एक सिस्टम डाल दो अपने पास। एक तो मटेरियल मेन लोकेशन पे आएगा, वहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको एक स्टॉक मिल जाएगा अच्छे से। और या तो साइट टू बाय साइट आप ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे मेन लोकेशन पे लिया ही नहीं, परचेस करते समय ही मैंने यहाँ पे पूना गोडाउन ले लिया, देखो यहाँ पे
यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने सीधे पुणे लोकेशन ले ली। सो ये भी हो सकता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बोले गए हमें, जिसमें एज अ सी आपको पता है सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो बोला है कि वो चाहते हैं कि सेगमेंट वाइज रिपोर्ट बोला आप। ओके, इसके लिए या फिर AS9 के लिए जो रेवेन्यू रिकग्निशन बोला गया है, इसमें क्या होता है कि उस गोडाउन की स्टॉक की मुझे वैल्यू, जो उसका रेवेन्यू जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, कई मटेरियल डिलीवर करके बैठा और इनका इनवॉइस नहीं हुआ है तो मुझे उसको रिपोर्ट करना है। सो दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स विल बी पॉसिबल ओनली इफ यू हैव अ सिस्टम, खुद की सिस्टम होनी चाहिए। मेन लोकेशन पे आएगा फिर ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन। अब ये मूवमेंट कैसे किए देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट एंट्री में खोलता हूँ यहाँ पे, देखो। अब पहले वाउचर टाइप का सेटिंग भी बता देता हूँ क्या सेटिंग है। ये वाउचर टाइप कौन सा है, मटेरियल ट्रांसफर नाम का मैंने एक वाउचर टाइप बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है। ओके, एंट्री पहले दिखा देता हूँ, फिर मास्टर टाइप भी दिखाता हूँ क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है। यहाँ देखो, डेस्टिनेशन गोडाउन मतलब जहां पे मेरा मटेरियल जा रहा है, तो कोल्हापुर स्टॉक जो है मेरा लोकेशन, वहां पे मेरा मटेरियल जा रहा है। अभी कहाँ से जा रहा है, तो पूना से, सॉरी मेन लोकेशन से जा रहा है, ठीक है। अब कितना जा रहा है, कितनी क्वांटिटी है, आइटम कौन से यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीमेंट जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, मेन लोकेशन से जा रहा है, क्योंकि परचेस मेन लोकेशन पे किया था। क्वांटिटी कितनी जा रही है, तो मैंने जानबूझ के सेम क्वांटिटी नहीं ली है। यहाँ देखो 500 परचेस था मेरा सीमेंट का, मैंने यहाँ पे 150, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150, 400 क्वांटिटी मैंने बैग्स सीमेंट की पास की है अलग अलग लोकेशन पे, जानबूझ के कि उसका स्टॉक रहेगा। फिर ये मटेरियल ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, सीमेंट भी और स्टील भी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कोई पूछेगा नहीं, कुछ अलग से कुछ आने वाला नहीं है। बस एक सेटिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऊपर आप देख सकते हो वाउचर क्लास TRF मैंने जो बनाया हुआ है, और ट्रांसफर ऑफ मटेरियल इंटर गोडाउन। अब ये दो चीज क्या है मैं आपको पहले समझा देता हूँ, सेटिंग्स। ओके, तो हम जा रहे हैं यहाँ पे अल्टर वाउचर टाइप और मटेरियल ट्रांसफर। देखो मैंने नया वाउचर टाइप बना दिया। वी हैव ओनली 1 hour 1:30, ओके, डेढ़ घंटा अपने पास, so that I have to complete it as per my scenario, then you can ask your questions. मटेरियल ट्रांसफर अंडर स्टॉक जर्नल, ओके, यहाँ पे कोई सेटिंग नहीं किया हुआ है। यहाँ पे देखो ट्रांसफर TRF नाम से, मैंने कुछ भी नाम डाल दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाउचर क्लास बना दिया, एंटर दे दिया, और यहाँ पे लिखा है यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन, यस और नो। सो मैं इंटर गोडाउन के लिए यूज कर रहा हूँ ना, मेन लोकेशन भी मेरा ही है, पुणे भी मेरा ही है, सातारा भी मेरा ही है और कोल्हापुर भी मेरा ही है, इसलिए उसको मुझे बोलना है यस इट इज फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूं, ठीक है। अब इसी तरीके से और एक वाउचर टाइप बताता हूं मैं, मटेरियल यूज्ड या यूज्ड करके मैंने एक वाउचर टाइप बनाया है यहाँ पे, साइट वाइज मटेरियल यूज्ड, ये भी वाउचर टाइप देख लो। अब मान लो यहां से मटेरियल गया पुणे, अब पुणे में मटेरियल गया तो पुणे के यहाँ पे स्टॉक में गिरेगा वो, अब तक कंज्यूम ही नहीं हुआ ना। आई वॉन्ट टू कंज्यूम दैट मटेरियल एट दैट लोकेशन। फिर मैंने सेम लॉजिक लिया, नाम ऐसे रख दिया साइट वाइज मटेरियल यूज्ड अंडर स्टॉक जर्नल, बाकी कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आ गया एक नाम निकाल लिया यूज्ड करके, कोई भी आप नाम डाल दो यहाँ पे, एंटर। और यहाँ पे आप देखो लास्ट में, नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज इंटर गोडाउन ट्रांसफर, आई एम सेइंग यूज क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन। और ये ऑप्शन आपको तभी आएगा जब आप यहाँ पे F12 दबाओगे। ओके, क्रिएट मोड में जब आप क्रिएट करते रहते हो तो यहाँ पे आपको F12 दबाना है और जॉब क्लास को यस करना है, जॉब कॉस्टिंग। इट मीन्स one voucher type is for material transfer from location A to location B, and one voucher class is created separately for purposefully job costing. ओके, यहाँ पे इंटर गोडाउन नहीं बोला मैंने, चलो इसकी भी एंट्री हम देख लेते हैं। सो अगेन हम डे बुक देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 अप्रैल का। ओके, अब एंट्री देखते हैं। देखो इसी तरीके से मैंने 3 एंट्री किया हुआ है, एक पुणे मटेरियल ट्रांसफर हुआ कोल्हापुर, ये गया पुणे में और ये गया सातारा में।
ठीक है, कंबाइन एंट्री कभी मत करो, सिंगल सिंगल एंट्री होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री क्या हुआ, उसका कंजम्पशन भी दिखा देता हूँ, वहां से कितना कंज्यूम हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, उस साइट का कंजम्पशन क्या हुआ। ठीक है, पहले उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखो, मतलब ये 3 एंट्री था, ये 3 एंट्री का कंजम्पशन। अब ये एंट्री, ये जो क्लास है वो ऐसे दिखेगा, वाउचर क्लास यूज्ड, जो हमने बनाया था ना, मटेरियल यूज्ड, साइट वाइज मटेरियल यूज्ड। इसमें क्या होगा, सीमेंट लोगे आप, ठीक है, गोडाउन कौन सा लिया, कोल्हापुर, जो भी स्टॉक है वहां से यूज हो रहा है वो। आपने 150 वहां पे गोनी ट्रांसफर की थी सीमेंट की, उसमें से 100 यूज हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखो 150 यूज, 250 यूज हो गई। हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, इट इज एज पर नॉर्मल टैली, कुछ भी बड़ा रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे किया कि सीमेंट जो है ये कंजम्पशन है लेफ्ट साइड का, राइट साइड का प्रोडक्शन है, हमें कंजम्पशन करना है। तो सीमेंट पूना में से कितना यूज हुआ, 100 बैग्स। तो इस तरीके से हमने तीनों का एंट्री पास कर दिया। इसके बाद अब आता है पेमेंट। यहाँ पे देखो पेमेंट, अब खर्चा भी हो जाएगा, यहाँ पे पेमेंट लिया। अब पेमेंट सिंपल है, इसमें कोई बड़ी इशू की बात इसमें नहीं है, सिंपल है। देखो सैलरी ऑफ वॉचमैन मैंने लेजर बना दिया, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे मैंने बोला कॉस्ट सेंटर चाहिए, यस, ओके। और ये मैंने कॉस्ट सेंटर पहले भी दिखा दिए थे, कोल्हापुर साइट मैंने कैसे बनाया, देखो यहाँ पे कोल्हापुर साइट, और इसको बोला है जॉब कॉस्टिंग चाहिए क्या, यस। नॉर्मली ये ऑप्शन ऑफ रहता है, F12 दबा के आपको जॉब कॉस्टिंग ऑन करना है, ये मैंने पहले ही दिखा दिया। जैसे गोडाउन है वैसे कॉस्ट सेंटर है, ओके, तीनों हमारे हो गए। ओके, यहाँ तक सैलरी हो गई। लेबर चार्जेस, अब हो सकता है कि लेबर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कोई और कोई एक्सपेंडिचर है, आप सब एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी 2 अप्रैल से 2 अप्रैल लेता हूँ। ठीक है, मैंने जानबूझ के 2 अलग अलग डेज पे एंट्री की है। देखो अभी लेबर चार्जेस का एंट्री, अब सिंपल है, लेबर चार्जेस आप पे कर रहे हो तो सेम लॉजिक, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस, हो गया आपका, कोई चेंज नहीं इसके अंदर, एंट्री सिंपली पास हो गई। अब ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने पहले बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन भी है, इसके अंदर मैं वापस कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। यहाँ पे देखो इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड नो है, और यस कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, यस, सिंपल है, कोई भी खर्चा हमने यहाँ पे नहीं किया हुआ ज्यादा। अब फ्लैट सेल हुआ, हाँ अब इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट इनवाइस किया हुआ है, मैंने चेंज मोड जो है अकाउंट इनवाइस रखा हुआ है, इट मीन्स इन्वेंट्री इंपैक्ट नहीं होने वाली मेरी, ऑब्वियसली वो मेरा इनकम है डायरेक्टली। और हमने यहाँ पे क्या किया, 5 लाख रुपए ले लिए। अब जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 5 लाख, तो उसने पूछा कि कौन से साइट का फ्लैट बेचा, तो कोल्हापुर का यहाँ पे बेचा मैंने। इस तरीके से मैंने तीनों यहाँ पे एंट्री पास कर दिए, तो ये वाली एंट्री मेरी हो गई, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख। ठीक है, चलो अब कॉस्टिंग देखते हैं। अब नॉर्मल यूजर्स जो है देखते हैं रिपोर्ट, वो कौन से देखते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कॉस्ट सेंटर। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके अपने अपने रिपोर्ट देख लेते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप चाहिए तो इसको ब्रेकअप देख लिया, या फिर कोई आएगा लेजर वाइज, या फिर लेजर वाइज को ब्रेकअप देख लिया कि कौन कौन से सेट में क्या क्या खर्चा हुआ। अब इसकी समरी रिपोर्ट मुझे चाहिए टोटल, इसके लिए कहाँ पे जाना है आपको, डिस्प्ले में जाओ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चले जाओ, एंड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जॉब वर्क एनालिसिस, जॉब वर्क एनालिसिस, एंटर। अब कौन सी साइट का देखना है, फॉर एग्जांपल कोल्हापुर साइट ले लेते हैं पहले, एंटर, अल्टर या फोन कर लो यहाँ पे। नाउ सी द कॉस्टिंग, फर्स्ट 5 लाख, इट मींस इट इज योर सेल्स अकाउंट, इट इज योर इनकम, ये आपका इनकम हो गया कि जिसमें आपने 5 लाख का फ्लैट बेचा। मैं 1 बाय 1 एक्सेल और टैली दोनों दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो 5 लाख का फ्लैट बेच दिया, ठीक है।
अब 5 लाख के अगेंस्ट, 5 लाख के अगेंस्ट अगर आप देखोगे क्या क्या खर्चा हुआ, तो वन बाय वन आप देख लो। जो कंजम्पशन था, मटेरियल का कंजम्पशन था, वो कितना हुआ? 2,05,000। अब 2,05,000 किस तरीके से हुआ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखो, कोल्हापुर स्टॉक नाम का हमने यहाँ पे गोडाउन बना दिया था, ठीक है। यहाँ देखो 2,55,000 का मटेरियल उसको मिला, इनवर्ड हुआ, और 2,05,000 का मटेरियल उसका यूज हुआ, और 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है। मतलब 50,000 का सीमेंट और स्टील अवेलेबल है एट द पॉइंट ऑफ कोल्हापुर लोकेशन, ठीक है। एंटर देके मैं दिखा देता हूं कैसे। यहाँ देखो, सीमेंट 45,000 का इन्वर्ड हुआ था, 2,10,000 का स्टील इन्वर्ड हुआ था। यहाँ पे देखो आप एक्सेल में इन्वर्ड कितना हुआ था, यहाँ पे कोल्हापुर में 45,000, थोड़ा ग्रीन कलर कर देता हूं मैं यहाँ पे आपको देखने के लिए, और 2,10,000। अब ये तो मटेरियल इन्वर्ड हुआ, इट इज नॉट लाइक दैट मटेरियल इज कंज्यूम्ड। Material transferred means not consumption. Material transferred means we are shifting a material from location to location. अब उस लोकेशन से जितनी गोनी उसने यूज कर ली, जितना सीमेंट उसने यूज कर लिया, जितना स्टील यूज कर लिया, इट वाज कॉल्ड एज मटेरियल कंजम्पशन, जो हमने दो एंट्री में डाला। देखो यहाँ पे सीमेंट में देखो एंटर देता हूं, तो एक एंट्री हुआ था जहां पे हमने मटेरियल शिफ्ट किया था कोल्हापुर स्टॉक्स को मेन लोकेशन से, दैट वाज द फर्स्ट एंट्री, इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। और दूसरा एंट्री जो था, इट इज कॉल्ड एज मटेरियल यूज्ड फ्रॉम कोल्हापुर लोकेशन। ओके, 150 की जगह पे 100 का हमने यूज किया। फिनिश। नाउ कंजम्पशन मींस ओपनिंग स्टॉक प्लस इनवर्ड, ओके, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वट एवर रिमेनिंग इज योर कंजम्पशन। सो टैली ने यहाँ पे अपने आप कंजम्पशन की वैल्यू निकाली 2,05,000। उसी तरीके से यहाँ देखो आप, और पूरी हिस्ट्री मिलने वाली है। 2,55,000 का इनवर्ड हुआ था, ये देखो यहाँ पे ये कंजम्पशन लिखा है, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे 50,000 का मेरे पास कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। 255 का मटेरियल आया था, 2,05,000 का यूज किया, ओके, तो कॉस्ट में आएगा 2,05,000 ही। नाउ एक्सपेंडिचर आपको पता है कि लेबर चार्जेस पे किए थे, सैलरी पे की थी, ट्रांसपोर्टेशन पे किए थे, सो दैट वाज द 1,19,000। अब 2,05,000 अधिक 1,19,000, 3,24,000 मेरा कॉस्टिंग हुआ, और मेरा प्रॉफिट हुआ 1,76,000, 76,000। सो आप अभी कोई भी साइट देख लो, किसी भी साइट में आपको देखो, यहाँ पे पूना साइट में कोई स्टॉक नहीं है, पूना साइट में कोई स्टॉक नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए तो एक्सेल में देख लो, मटेरियल ट्रांसफर हुआ था 100 और 4,000 kg, ये 30,000 और 2,80,000 का, और उतना ही मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है 3,10,000, 3,10,000। तो कोई स्टॉक नहीं है, ऑल इज योर कॉस्ट, ठीक है। सो 17 साइड है यहाँ पे। फिनिश। द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग इज very easy. 50% of part people are using from cost center. Only you have to configure a godown, and that godown should be mapped, linked with your cost center. That is the only key to get project wise costing from Tally-Prime. Very nice और very simple है। इसके अंदर आप F12 करके अलग अलग परसेंटेज वाइज सिनेरियो या जो आपको चेंज करना है उसके हिसाब से निकाल सकते हो। सो यू कैन गेट कॉस्ट विथ परसेंटेज। मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया था, सिंपल वाला, कोई डिफिकल्ट या क्रिटिकल एग्जाम्पल जानबूझ के नहीं लिया हुआ। अब प्रोजेक्ट कॉस्टिंग के बारे में क्वेरी देखते हैं। आप लोगों को प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में कुछ पूछना है तो, लेकिन आई थिंक वी हैव टू टेक फर्स्ट सेकंड, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ट्रैकिंग, ओके। पहले उसको भी ले लेते हैं और दोनों एक साथ हम क्वेश्चंस लेते हैं। मैंने दो अलग डेटा बनाए हैं यहाँ पे, ओके, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे दो अलग डेटा बनाए हैं। वन इज फॉर बिल्डर्स, दोज आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, एंड सेकंड इज नेक्स्ट जो ऑर्डर बेस्ड काम करते हैं, उस जॉब के ऊपर काम करते हैं, आइटम के ऊपर काम करते हैं। सो जस्ट आई एम शेटिंग दिस कंपनी फर्स्ट,
आइटम कॉस्टिंग। और इसकी सेटिंग्स भी मैं दिखा देता हूँ, और इसका भी एक एग्जांपल सिंपल से समझा देता हूँ क्या किया है यहाँ पे। Okay, the first session is completed. It's called as project costing. In Tally, it is called as job costing. Now the second topic is item costing. इसकी कंसेप्ट भी सिंपल से समझा देता हूँ. What is item costing? एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, डिस्प्ले डे बुक 1 अप्रैल से 1 अप्रैल. मैंने एक एग्जांपल लिया कि किसी पार्टी से मुझे एक ऑर्डर आ गया. ओके, मान लो अभी कोई गाड़ी है, मतलब कोई व्हीकल है, वो मुझे आ गई रिपेयर के लिए. अब मेरे पास तो हजारों व्हीकल्स आने वाली है, दिन भर चलता ही रहेगा. तो मैं गाड़ी नंबर वाइज मेंटेन करूं कि जॉब कार्ड वाइज मेंटेन करूं, ये सब इश्यूज होते हैं. सो नाउ द कंसेप्ट इज लेबर चार्जेस अ सिंगल आइटम, labor charges is a single item, and I want costing of a specific job card. See, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पार्टी बना दिया सिंपल, ठीक है. और इसकी F11 भी देख लो आप, कंपनी की फीचर्स क्या बनाया है यहाँ पे. मैंने यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग को ऑन किया हुआ है, एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग. यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग मैंने बंद किया है पूरा, सो दैट आई वांट टू सेग्रीगेट टू डिफरेंट कंसेप्ट इन टू डिफरेंट कंपनीज. अगर आप लोगों को दोनों मर्ज करना है, जॉब कॉस्टिंग विथ आइटम कॉस्टिंग देखनी है, तो आप दोनों ऑन कर लो. मैंने पहली डेटा में इसको यस किया था, कॉस्ट ट्रैकिंग को नो किया था. अब मैंने इसको यस करके रखा हुआ है और जॉब कॉस्टिंग को नो करके रखा हुआ है. कोई जीएसटी नहीं लिया है, पार्टी बना दिया, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है. ऑर्डर नंबर डाल दिया, जो भी है आपका सेल ऑर्डर नंबर. लेबर चार्जेस नाम का लेजर बना दिया. इसको देखो क्या क्या किया हुआ है सेटिंग. यहाँ पे मुझे एक सेटिंग करना है, कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट ट्रैकिंग, यस, एंड दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल इन F12. यहाँ पे आपको जाके यहाँ देखो, इज कॉस्ट ट्रैकिंग एप्लीकेबल फॉर स्टॉक आइटम. ये लेबर चार्जेस के लिए कॉस्ट का ट्रैकिंग रखोगे क्या आप? यस, आई वांट टू से यस. बाकी कोई सेटिंग नहीं है, सिंपल से होगा ये. जैसे ही आप ऑर्डर डालने जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ड्यू डेट पूछेगा, जैसे वो काम कब करके देना है. सुबह गाड़ी आ गया, मैं बोलता हूँ उसको 4 दिन के बाद तुम्हारी गाड़ी रिपेयर करके देने वाला हूँ, ठीक है, एंटर. अब लेबर में देखो, यहाँ पे मैं वापस दिखा देता हूँ. लेबर चार्जेस में मैंने यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर्स रखे हैं. नंबर्स नहीं रखूंगा मैं यहाँ पे, तो जॉब कॉस्टिंग का ये कॉस्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन आएगा नहीं. मैंने यहाँ पे नंबर्स रखा हुआ है और ट्रैकिंग को यस किया हुआ है. लेकिन एंट्री में मैं कैसे बोल सकता हूँ कि लेबर की नंबर क्या है? ओके, आई कैन नॉट से लेबर इज नॉट काउंटेड एज 1 2 3. ओके, 4 दिन काम चल रहा है, जितना होगा उतना लेबर होगा इसका. तो क्वांटिटी ब्लैंक रखो, रेट ब्लैंक. 25,000 के ऑर्डर है, मैंने एक एस्टिमेशन दिया उसको, भाई तुम्हारी गाड़ी रिपेयर करने के लिए इट इज एस्टिमेटेड दैट 25,000 रुपीज विल बी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली. एंटर. नाउ Tally will ask you a number. अब आप नंबर इसको क्या दोगे? जैसे मैंने दिया यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या दिया है, जॉब कार्ड 1 और इसका गाड़ी नंबर डाल दिया कि फ्यूचर में जब भी वो सर्च करने आएगा मेरे पास कि मेरी गाड़ी में क्या क्या हुआ था, तो उस नंबर से मैं सर्च कर सकता हूँ. ओके, और हमेशा ये इसको स्टिकअप रहेगा. अब जॉब कार्ड 1 की जगह पे आप इसका नाम डाल दो, जैसे राजेंद्र डैश एमएच जोरनार और मेरा गाड़ी नंबर, तो वो भी हो सकता है. आपकी इच्छा, जितना चाहो आप इसमें कर सकते हो. बाकी कोई चेंज नहीं है. ओके, चाहो तो मैं यहाँ पे और एक बार लेके दिखाता हूँ. लेबर चार्जेस मान लो 30,000 का ऑर्डर है, एंटर दिया. अब यहाँ पे देखो, मुझे उसको बस सिलेक्ट करना है, ठीक है. जब आप नया ऑर्डर पास करोगे तो नए ऑर्डर में आप नंबर क्रिएट कर सकते हो, और अल्टर कर रहे हो तो आप जो अवेलेबल है उसको ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है. सो इस तरीके से आप ट्रैकिंग ले सकते हो. चलो, एक ऑर्डर ट्रैक हो गया. अब हो सकता है कि मैंने इसी गाड़ी का काम करने के लिए बाहर से कुछ मटेरियल मंगवाया है, या
बाहर से कोई काम करवा के लिया, जैसे डेंटिंग पेंटिंग मेरे यहाँ होता नहीं है तो मैंने बाहर भेज दिया उस गाड़ी को और वहां से काम करवाया, तो मुझे तो कॉस्टिंग चाहिए उसका, उस गाड़ी का। तो मैंने यहाँ पे क्या कैसे एंट्री पास किया, देखो बिल नंबर परचेस से पास किया है, कैश में से काम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लेबर चार्जेस, ठीक है। और वही सेम लॉजिक, 3,000 रुपए का मैं बाहर से लेबर करके ले रहा हूँ और ट्रैक कर रहा हूं मैं उसी नंबर के ऊपर। अब लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी आप अवेलेबल लोग मेंबर्स हो आपको याद में आ रहा होगा, वी हैव यूज्ड दिस कंसेप्ट सेम टू सेम इन आवर प्रीवियस सिनेरियो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। इसमें आपने सेम लॉजिक यूज किया था, बस वो कॉस्ट सेंटर्स थे। अब कॉस्ट सेंटर्स आइटम को तो लगते नहीं है, कॉस्ट सेंटर्स आर अवेलेबल ओनली फॉर लेजर्स। इसके लिए इन्वेंट्री में कॉस्ट ट्रैकिंग होता है, तो हमने इसको ट्रैक किया यहाँ पे उसी नंबर पे, उसी जॉब के ऊपर मैं ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। और एक लेबर का लेजर मैंने बना के रखा हुआ है, सीए लोगों के लिए एक जरूरी होता है कि लेबर चार्जेस का लेजर अलग चाहिए, तो यहाँ पे सेव किया। फिर देखो एक पेमेंट भी कर रहा हूँ 4,000 का लेबर पेड। अब लेबर पेड जो बनाया है यहाँ पे, आप देखो क्या क्या मैंने बनाया हुआ है, अंडर परचेस अकाउंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी ले सकते हो। इसको बोल रहा हूं मैं इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड, यस, ठीक है। और कॉस्ट अलोकेशन, यस, मुझे कॉस्टिंग भी चाहिए, बाकी कोई चेंज नहीं है। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड यस करने की वजह से वो पूछेगा मुझे कि कौन सी इन्वेंट्री या जो भी आपका मटेरियल है उसको इंपैक्ट करोगे आप। तो देखो कैसे एप्लीकेबल होता है, एंट्री दिखा रहा हूं, इसके बाद हम देखेंगे उसका रिपोर्ट, ठीक है। सेम 4,000 जॉब ले लिया और एक्सेप्ट, ठीक है। अब आया सेल्स, मतलब मैंने 3,000 का खर्चा किया, 25,000 का ऑर्डर था, 3,000 का खर्चा किया, 4,000 का खर्चा किया और 15,000 का मुझे सेल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने क्या किया, ट्रैकिंग लिस्ट में से ऑर्डर ले लिया, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर भी मुझे पता चलनी चाहिए। सिंपल है, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ गया, ड्यू था वो 1 तारीख को, 15,000 का काम हुआ, क्वांटिटी नहीं डाला यहाँ पे और ट्रैकिंग ले लिया। पहले सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, जहाँ पे कोई बड़ी कंजम्पशन की इश्यूज नहीं है। ये वो सिंपल एग्जांपल फर्स्ट डे का। पहले इसकी रिजल्ट देखते हैं, फर्स्ट डे के क्या क्या हो गए। अब देखो यहाँ पे, मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं लिया, स्टॉक जर्नल नहीं लिया, इसमें कोई डिटेल वाला डेटा नहीं लिया हुआ है। रिपोर्ट देखो यहाँ पे डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाओ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में चले जाओ और यहाँ पे आइटम कॉस्ट एनालिसिस, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, यहाँ पे कॉस्ट ट्रैकिंग ब्रेकअप, इसको लेना है। अब यहाँ पे देखो 2 एग्जांपल है मेरे पास, एक गणेश मूर्ति का एग्जांपल मैंने किया, थोड़ी देर में दिखा देता हूँ, और ये लेबर वाला, एक गाड़ी रिपेयर के लिए आ गया, उसको ऐसे मैंने किया, एंटर, अल्टर F1। देखो सिंपल है, 7,000 रुपीज मेरा कॉस्ट हुआ था, आपको पता है 3,000 और 4,000, चाहो तो आप एंटर देके देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ देखो 3,000 और 4,000। फिर 15,000 का मेरा सेल हुआ था, एंटर देके देख सकते हो आप यहाँ पे 50,000 का सेल हुआ था, तो 15 माइनस 7 8,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है, कोई सेल ऑर्डर का क्वांटिटी पेंडिंग नहीं है, इन्वेंट्री इंपैक्ट नहीं हुआ, स्टॉक इंपैक्ट नहीं हुआ। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ job work, you can say a simple cost tracking. Now we are taking some additional advanced, this is the next example। पहले रिजल्ट देखते हैं और इसका इनपुट दिखा देता हूं। सी, गणेश मूर्ति मैन्युफैक्चरिंग इज माय बिजनेस, ओके, and first order is received for 100 Ganesh Murtis. Second order also received on same item, not on a second another item. बहुत सारे लोग अलग अलग आइटम बनाते हैं ऑर्डर वाइज। अब पहले क्या करते देखते हैं इसका रिजल्ट, पहले रिजल्ट देखो आप लोग। तो 100 की मेरी जो गणेश मूर्ति जो मैंने बनाई, ओके, उसके सामने मुझे क्या क्या खर्चा आ गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लग गए, लेबर चार्जेस लग गए, ओके,
अदर ऐसी कॉस्ट थी जिसने इन्वेंट्री को इम्पैक्ट नहीं किया है, वो भी आ गई इसके अंदर। और एक स्प्रे प्रिंटिंग का काम है जिसने अफेक्टेड टू इन्वेंट्री वैल्यूअल्स। ओके, गणेश मूर्ति का जो कॉस्ट है मेरा उसको अफेक्ट किया है इन्वेंट्री वैल्यूएशन में, ठीक है, वो भी दिखा देता हूं। इसके बाद मेरे पास कुछ स्टॉक भी बचा हुआ है, कंजम्पशन भी है, थोड़ा स्टॉक भी बचा हुआ है, सब मिला के मेरा यहाँ पे कॉस्टिंग शीट आ गया। ओके, यहाँ पे नीचे भी देखो ऑर्डर कितना रिसीव हुआ था, मटेरियल डिलीवर कितना किया और बिल कितना हुआ, यहाँ पे सब कुछ है। ओके, और ऊपर देखो यहाँ पे ऑर्डर आपने कितना प्लेस किया ऑन बिहाफ ऑफ दैट 100 गणेश मूर्तिज, जेआरएन कितना हुआ, परचेस की बिल की एंट्री कितनी हो गई और मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ। अब मेरा एग्जांपल क्या है, आई एम द मैन्युफैक्चरर, सो परचेस तो होगा ही नहीं गणेश मूर्ति का, सो आई एम द मैन्युफैक्चरर। अब मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसका जो रिजल्ट है उसकी इनपुट एंट्रीज दिखा देता हूं, कैसे मैंने किया है सेटिंग यहाँ पे। ओके, थोड़ा हेवी हो सकता है बिकॉज दीज आर एक्चुअली एवरीथिंग इज रिलेटेड विथ कॉस्टिंग एंड कॉस्टिंग इज नॉर्मली वी हैव इन आवर ब्रेन। हर किसी के बिजनेस का ब्रेन में कॉस्टिंग होता है, लेकिन पेपर पे निकालने के बैठेंगे तो अपने पास वो फिगर्स होती नहीं, और ऊपर से सिस्टम में बैठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर इसको आप रिपीटेडली देखोगे और ट्राई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको कॉस्टिंग मिलने वाला है। ओके, सो लेट अस सी विथ डे बुक 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल नहीं, 2 अप्रैल टू 2 अप्रैल। सी, पहले तो सेल ऑर्डर आएगा, मैंने सेल ऑर्डर को एंटर देता हूं। मैंने यहाँ पे पार्टी निकाल लिया, एक नया पार्टी ए नाम से बोल दिया, सन्ड्री डेटर्स, कोई कहीं पे कुछ अलाउ डिसअलाउ नहीं किया, यस नो कुछ नहीं किया, ठीक है। ऑर्डर नंबर डाल दिया मैंने, ओके, ये SO001 एंटर। गणेश मूर्ति नाम का एक आइटम बना दिया है, गणेश मूर्ति, और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, एनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग। अब इसमें तो कोई नया नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था वही थे। ऑर्डर ड्यू कब होगा आपने डाल दिया यहाँ पे कि मुझे 100 गणेश मूर्ति की ऑर्डर 1 अप्रैल को पूरी करके देनी है, क्वांटिटी 100, रेट 2 लाख की ऑर्डर मेरे पास, ठीक है। अब कॉस्ट ट्रैकिंग में मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रिएट न्यू, यहाँ देखो ऊपर क्रिएट न्यू में जाके मैंने ऐसे बना दिया। सो टैली विल गिव मी ऑप्शंस लाइक यू कैन यूज 2 नंबर, 2 इज वाउचर नंबर ऑफ सेल ऑर्डर, देखो यहाँ पे ऊपर बैक साइड में वाउचर 2 नंबर का हो सकता है तो इसको भी ले सकते हो, और सेल ऑर्डर आपने क्या डाला हुआ है, SO001, सो यू कैन यूज SO001 ऑल्सो। लेकिन मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, तो मैं सीधा चाहता हूं कि 100 गणेश मूर्ति नाम का मैं खुद का एक बनाऊं, 100 की ऑर्डर आ गई मुझे। ओके, देखो गणेश मूर्ति इज अ सिंगल आइटम, मैंने अलग अलग आइटम नहीं बनाए। थोड़ी देर में और मुझे ऑर्डर आएगी 200 गणेश मूर्ति की, तो मैं वापस अंदर जाऊंगा, नया ट्रैकिंग ऑन करूंगा, 200 गणेश मूर्ति, चाहो तो इसमें नाम डाल दो पार्टी का, ठीक है। सेल का जो लेजर आएगा मूर्ति का वो लिया मैंने यहाँ पे और सेव किया, तो ले मुझे ऑर्डर आ गया। अब मैं जाऊंगा सीधे मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले मैं पहले आइटम का सेटिंग बता देता हूँ। गणेश मूर्ति को मैंने क्या सेटिंग किया हुआ है, मैंने इसके लिए बिल ऑफ मटेरियल बना के रखा हुआ है, एक शाडू और एक प्लास्टर। शाडू मतलब वो मिट्टी वाला गणेश मूर्ति आएगा, और प्लास्टर मतलब वो जो प्लास्टर में बनेगा। अब शाडू के अंदर जाओ के देखेंगे तो सिंगल आइटम के लिए मुझे क्या क्या लगने वाला है, जैसे शाडू का मिट्टी लगेगा, कलर लगेंगे, थोड़ा वेस्ट क्ले तैयार होगा मेरे पास, स्क्रैप जनरेट होगा, और जो छोटा गणेश होता है उसको गनोबा बोलते हैं यहाँ पे, तो इसको एक ये भी एक बनेगा, उसमें से जो बचेगा मूर्ति मिट्टी जो बचेगा उसमें से ये भी बन जाएगा। फिर ये कंपोनेंट है कि को प्रोडक्ट है कि स्क्रैप है कि बाय प्रोडक्ट है, आपको सिलेक्ट करना था। ओके, सो कितना लगने वाला है, एक गणेश मूर्ति बनाने के लिए 1.5 kg का मिट्टी लगता है, 500 kg आधी kg का मुझे कलर लगता है, और 200 ग्राम का मेरा स्क्रैप जनरेट होगा इसमें से, स्क्रैप मिट्टी, और एक बाय प्रोडक्ट बनेगा 1 नंबर का, एक गनोबा जो छोटा गणेश होता है, मिट्टी वाला गणेश होता है वो,
उसको कलर नहीं होता है. So that will be generated for 1 and the cost of total cost will be allocated 5 and 2%. मतलब टोटल कॉस्ट का 1% 2% में ये गनोवा बन जाएगा और वेस्ट क्ले जो है वो 5% कॉस्ट में आ जाएगा. ठीक है. प्लास्टर में वही हुआ है. प्लास्टर यूज होगा 3 kg और कलर यूज होगा 2 kg. इसमें से कुछ बनेगा नहीं. ओके. उसमें कोई बाय प्रोडक्ट होता नहीं, को प्रोडक्ट होता नहीं. अब मैंने ये जो रॉ मटेरियल था परचेस नहीं किया है. आई डोंट वांट टू मेक कंफ्यूजन्स फॉर परचेसिंग. ओके. उसकी एंट्री मुझे नहीं करनी है. तो मैंने सिंपल से आइटम का ऑर्डर लिया. अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहा हूं. तो जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग किया मैंने, यहाँ पे गणेश मूर्ति डाल दिया. कितने पीस बनेंगे? 100. टैली विल आस्क मी अगेंस्ट विच कॉस्ट ट्रैकिंग यू वांट टू ट्रैक दिस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल. मैंने इसको बोल दिया 100 गणेश मूर्ति नाम का जो एक ट्रैकिंग नंबर मैंने बनाया है. कहाँ पे? सेल ऑर्डर में. देखो यहाँ पे सेल ऑर्डर में. ओके. आइटम कौन सा है? गणेश मूर्ति. और पार्टी कौन सी है? पार्टी ए. क्वांटिटी कितनी? 100. एवरीथिंग इज हियर. अब मान लो 200 की भी ऑर्डर होती, पार्टी बी की होती, तो यहाँ पे नीचे दिखा देता कि कौन से पार्टी की ऑर्डर के अगेंस्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो. तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया. फिर अपने आप तो आ जाता है. आपको पता है कि ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है. ठीक है. बिल ऑफ मटेरियल वाला कंसेप्ट आप लोगों को पता है, तो मैं इसको नहीं ले. तो अपने आप यहाँ पे वो सब क्ले और ये सब गनोमा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उतने आप उसने कॉस्टिंग ले लिया. 5% ऑफ रॉ मटेरियल 27,500 का 5% यहाँ पे ले लेगा. उसके हिसाब से चलेगा. फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? लेबर चार्जेस डाल दिए. ओके. क्योंकि सही से कॉस्टिंग होना चाहिए मेरा. 27,500 माइनस दिस इनकम. ये इनकम है मेरा जो स्क्रैप जनरेट हुआ एडिशनल, प्लस दिस एक्सपेंडिचर. तो सब मिला के मुझे 739 में मेरा एक गणेश मूर्ति बनता है. ओके. इसके बाद इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पे खर्चा किया, थोड़ा एडिशनल खर्चा किया. अब ये थोड़ा समझने वाली चीज है. यहाँ पे मैंने एक ही पेमेंट किया है. यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. मैंने यहाँ पे जॉब चार्जेस नहीं लिया है, कॉस्ट ट्रैकिंग नहीं लिया हुआ है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम मैंने उसकी कॉस्ट ऑलरेडी गिनी है. वापिस 1000 ले लूंगा तो वापिस कॉस्टिंग बढ़ जाएगा. आई डोंट वांट टू मेक डबल कॉस्टिंग, रॉन्ग कॉस्टिंग. सो मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल बोल दिया. ठीक है. अब वहां पे रह गया था स्प्रे प्रिंटिंग. अब स्प्रे प्रिंटिंग क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के टाइम नहीं होता है, पूरा बनने के बाद उसका स्प्रे का प्रिंटिंग होता है. ठीक है. और ये क्या होने वाला है? गणेश मूर्ति की कॉस्ट जो भी मेरा स्टॉक बढ़ेगा मेरे पास उसमें अफेक्ट करने वाला है. तो मैंने यहाँ पे सेटिंग क्या किया है? देखो, इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड एंड ऑल्सो आई वांट टू ट्रैक कॉस्ट. ठीक है. बाकी एंट्री सिंपल है. सिंपल से हमने किया. दूसरा लेजर देखो, अदर कॉस्ट. इसमें मैंने क्या किया है? इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करने वाला है. गणेश मूर्ति की इन्वेंट्री को इफेक्ट नहीं करेगा वो, लेकिन मुझे कॉस्ट शीट में चाहिए. आप समझ लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है, जो कहता है कि यू हैव टू ऐड और लेस कॉस्ट अप्रोप्रिएटेड और डिस्काउंट रिसीव्ड और एनी बेनिफिट्स टू दैट पर्टिकुलर आइटम. अगर मुझे उस आइटम के ऊपर कॉस्ट ऐड करनी है या डिस्काउंट को लेस करके उसका कॉस्टिंग सही लाना है, तो मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को फॉलो करना पड़ेगा. दैट व्हाई हियर आई एम सेइंग इन्वेंटरी वैल्यूज आर अफेक्टेड और नॉट. इसका मैं रीजन और स्टॉक भी बता देता हूं. तो जैसे रिजल्ट आप देखोगे ना, पता चलेगा कि ये नॉट अफेक्टिंग और अफेक्टिंग में क्या फर्क है. तीनों के तीनों कॉस्ट शीट में तो आ जाएंगे, लेकिन स्टॉक सिस्टम में नहीं आने चाहिए. जैसे गणेश मूर्ति की कॉस्टिंग पे कॉस्ट शीट में मुझे वो खर्चा चाहिए, लेकिन बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस में उसको इफेक्ट नहीं आना चाहिए. ओके. फिर मैंने यहाँ पे सेल्स किया. सेल तो पता है आपको, सिंपल ऑर्डर लेना है और 100 क्वांटिटी बेच दी हमने 2000 से, और वही 100 वाला अपना ट्रैकिंग का नंबर ले लिया. फिनिश. ओके. पहले एग्जांपल में हम ट्रेडर थे, अब इस एग्जांपल में हम मैन्युफैक्चरर हैं. देखो ट्रैकिंग अब डिस्प्ले,
स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ओके, आइटम कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट ट्रैकिंग। अब हमने थोड़ी देर पहले जॉब कार्ड का देखा था, अब गणेश मूर्ति का देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो थे अफेक्टिंग वाला लेजर और नॉट अफेक्टिंग वाला लेजर, दोनों के दोनों कॉस्ट शीट में आ गए, 2000 और 500, ये दोनों के दोनों आ गए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे कॉस्टिंग में, क्योंकि आपने कॉस्ट ट्रैकिंग लिया है इसके लिए। और इसका जो स्टॉक था, जो भी कॉस्ट था मेरे पास, वो सेल्स में से लेस हुआ और मेरा प्रॉफिट आ गया। ओके, और ये जो प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट मेरा कितना है, 1216। मतलब हर एक पीस मुझे कितने में आता है और उसका लॉस मतलब कॉस्टिंग क्या हुआ और मुझे कितना मिलता है। अब इसमें आप देखोगे तो ऑर्डर भी है, मटेरियल डिस्पैच भी है, बिल भी है, एवरीथिंग इज देयर। पहले एग्जांपल में हमने वो नहीं लिया था इन्वेंट्री वाला। मैं इसका एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ स्टॉक में। एक मिनट जस्ट पहले मैं इसका और एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्टॉक आइटम वाइज भी देख सकते हो। ओके, यहाँ देखो, और मैंने गणेश मूर्ति लिया हुआ है। सो गणेश मूर्ति में ऐसे पता चलेगा कॉस्ट मतलब कितना हुआ मेरा। 100 पीस बनाने के लिए 783 रुपीज मेरा कॉस्ट लगा, और रेवेन्यू कितना आ गया, 2000 रुपये से आ गया, तो मेरा प्रॉफिट ये आ गया। सो कॉस्ट, रेवेन्यू, और कोई स्टॉक अगर बचता मेरे पास, अगर मैं कोई मिट्टी या जो भी है अगर मैं परचेस करके रखता मेरे पास, तो वो उस आइटम को अगर लगी नहीं है तो ये स्टॉक में आ जाती और ये प्रॉफिट में दिख जाता है यहाँ पे। ठीक है, मान लो 2000 रुपये का स्टॉक यहाँ पे होता, सो 2000 से मेरा क्लोजिंग स्टॉक उतना मेरा एडजस्ट हो जाता। ठीक है, अब रेगुलर स्टॉक दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। यहाँ देखो गणेश, ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे 1590 जो भी मेरा कॉस्ट हुआ है, जो भी उस एक पीस बनाने के लिए जितना मेरा लगा था, इनटू मेरा जितना सेल करके बचेगा स्टॉक, उसका क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। और ये चीज यहाँ पे अपने आप मेंटेन हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे और एक चीज दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जीरो बैलेंस, यहाँ देखो, जो लेबर चार्जेस का हमने एक मटेरियल का एक बनाया था पहले एग्जांपल में, कि जिसमें व्हीकल आया, मैंने रिपेयर किया और बाहर से कुछ खर्चा किया और उसको कॉस्टिंग निकल के देखा, इसको मैंने इन्वेंट्री मेंटेन किया नहीं है। ओके, इसके लिए बाहर वो दिखाएगा नहीं, लेकिन आप F12 में जाके वो जीरो बैलेंस वाला यस करोगे, जीरो वैल्यू वाला ऑप्शन, तो अपने आप यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। सो 3 और 4 7,000 रुपए का इन्वर्ट हुआ था, 15,000 का सेल हुआ और प्रॉफिट मिल गया। सिंपल से आप समझ सकते हो। ओके, सो यहाँ तक मैंने जितना एक्सप्लेन करना है, दोनों प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग मैंने किया हुआ है। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस एंड FAQs, अगर आपको कुछ समझा के दिखाना है उसके रिलेटेड। एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो इस विंडो के ऊपर। गणेश मूर्ति में क्या हुआ, 73,000 रुपीज का जो मेरा कॉस्ट था, ये वाला लास्ट में देखो एट द बॉटम 73,935 100 पीस का, वो यहाँ पे आ गया। और 2000 रुपये मेरे कौन से आ गए, 2000 रुपीज ऐड हो गए ना, देखो यहाँ 73 + 2 75,000 कॉस्टिंग आ गया। एंटर देता हूं मैं, 2000 आ गए यहाँ की, कौन से, स्प्रे प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंटर रेंट, सॉरी स्प्रे प्रिंटर का रेंट हमने दिया है, और ये इन्वेंट्री को अफेक्ट करके रखा है। देखो यहाँ पे दैट वैल्यूज विल बी अफेक्टेड और नॉट, इसको मैंने यस किया है। ठीक है, और वो 2000 इसके लिए वो गणेश मूर्ति के ऊपर ऐड हो गए। लेकिन इस चीज को देखो आप, अदर कॉस्ट, इसको मैंने बोला इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड नो, लेकिन कॉस्टिंग के लिए चाहिए यस। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ये 500 रुपए जो है ये यहाँ पे स्टॉक में नहीं आ गए। गणेश मूर्ति की कॉस्ट जो बढ़नी चाहिए एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2,
यहाँ पे 500 से नहीं बढ़ी है, क्योंकि मैंने ऐसा सेटअप किया है कि दैट 500 इज नॉट माय कॉस्ट फॉर दैट गणेश मूर्ति आइटम। हो सकता है मेरा पूरे स्टॉल का रेंट है वो, तो मैं अकेले आइटम के ऊपर नहीं चाहूंगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, सो इसलिए वो सेटिंग समझ लो कि कौन से आइटम में आपको इन्वेंट्री वैल्यू को अफेक्ट करना है और कौन सी वैल्यू को इन्वेंट्री अफेक्ट को नहीं करना है। ठीक है, ओके। सो संजय सर और जनक सर में भी both you are available, so I am just open up for questions and answers. Sure, sir, sure. So, हाँ, as of now, I do not see any question answers, but so I'm using getting some appreciations. okay, right sir, but we would more of okay, sorry. अगर if there is any question, अगर कोई question है तो please आप उसे अभी raise कर सकते हैं। कोई doubt है, कोई queries हैं। So participants can unmute, I think, and they can also So they talk can, directly. आप अगर कोई भी query है तो आप hand raise करिए वहाँ पे, तो I can bring you into the panelist and you can talk to us. I can also unmute you and you can talk. Okay, language related, there are some people asking, but problem is that there are some available participants from out of Maharashtra, even they are from Karnataka, and these states they have only one option, that Hindi or English. So we have to follow that. Then no questions. Okay, okay, but still I am just sharing here these two topics we have considered, whatever considered in this session. One is project costing for builders, and those are working in a specific project based accounting, and second is for costing of a same item which have repeated orders, और हर आइटम की मुझे कॉस्ट देखनी है, हर ऑर्डर की। तो मुझे जैसे फॉर एग्जांपल एक एजम्पशन ले लो कि कोई होममेड बिजनेस है जिसमें क्या होता है कि कोई खाने की कोई चीज बना रहे, और जैसे मान लो कोई अभी ये दिवाली आएगा, तो दिवाली में हमें एक ऑर्डर दिया जाता है किसी घर में कि मुझे 100 लड्डू या ये सब चीज बना के चाहिए, तो वो एक ही आइटम रहेगा, ऑर्डर अलग अलग आने वाली है। तो हर ऑर्डर की कॉस्ट मुझे अगर ट्रैक करनी है ना, सो दैट इज कवर्ड इन योर कॉस्ट ट्रैकिंग। ओके, दैट इज यू कैन से पर्टिकुलर ऑर्डर कॉस्टिंग। और जो पहले देखा था उसमें क्या था कि बिल्डर, जो भी बिल्डर काम करेगा, कोई भी प्रोजेक्ट लेगा हाथ में और इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट इसको चेक करना है। सो दैट वाज इन आवर फर्स्ट सेशन। सो जय विजय बिल्डर्स दैट डेमो इज सेइंग अबाउट प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। अब दोनों में सेम क्या है, इसमें प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में इन्वेंट्री मूवमेंट होती है, कॉस्ट सेंटर्स और गोडाउन्स को मैप करना होता है, दैट कॉस्ट सेंटर्स एंड गोडाउन शुड बी मैप्ड। Cost centers are treated as a job center, or you can say a project. Okay, godown is also that particular location where material is stored. और जो कॉस्टिंग अभी देखा हमने कॉस्ट ट्रैकिंग वाला, ये क्या चीज है कि जहां पे आपको कॉस्ट सेंटर्स होते ही नहीं, यू आर नॉट मेकिंग योर अकाउंट एंट्रीज एज पर योर कॉस्ट सेंटर लॉजिक। इन्वेंट्री में कॉस्ट ट्रैकिंग बन जाता है, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर्स। इन शॉर्ट, जैसे अकाउंट्स में कॉस्ट सेंटर है वैसे इन्वेंट्री में कॉस्ट ट्रैकिंग बन जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग दोनों टॉपिक है, बोथ टॉपिक आर इम्पोर्टेंट फॉर दीज पीपल्स। यस सर, बोलिए ना। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जब मैं ये सेल इनवॉइस प्रिंट कर रहा हूँ टैली प्राइम सेल, हाँ हाँ, तो वहाँ पे ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट वो तो सही है, हाँ दो कॉपीज मैं कर रहा हूँ, हाँ नेक्स्ट वन ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर आ रहा है, एक्चुअली होना चाहिए डुप्लीकेट फॉर सप्लायर। हाँ, ट्रिप्लिकेट फॉर सप्लायर क्यों हो रहा है, क्या कॉन्फ़िगरेशन? ओके सी, इसके अंदर सिंपल से मैं आपको रीजन बता देता हूँ जी। जैसे जीएसटी आया ना, तो बाकी टैक्स तो बंद हो गए, हमें तो पता है।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप देखोगे कि टैली में एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस इन्होंने वैसे भी रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे अब इन सब टैक्स के अंदर कितनी कॉपीज चाहिए, जैसे एक्साइज में 7 कॉपी चाहिए थी, उसका फ्लो अलग था, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर एसएससी, एक सीक्वेंस था। अब सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसा चाहिए कि बाय डिफॉल्ट 2 कॉपी रखनी है, एक कॉपी ओरिजिनल फॉर बायर और दूसरी कॉपी जो आपको चाहिए वो रखनी है, सो एक छोटा एड ऑन आएगा, आप डलवा दो इसके अंदर, आपके हिसाब से हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट टैली इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंज इन सीक्वेंस। आप देखो, आज आप जीएसटी का प्रिंट आउट निकाल रहे हो, उसी प्राइम में अगर आप 2004 या 5 का एक्साइज का डेटा निकालोगे तो आप बोलोगे वहां पे सीक्वेंस अलग चाहिए। सो टैली इज मेकिंग द प्रोडक्ट फॉर ऑल टैक्सेशंस, नॉट फॉर ओनली जीएसटी। अब जीएसटी में सीक्वेंस बदल गया, उन्होंने क्या बोला है, कॉपी भी नहीं चाहिए इनवॉइस का, फिजिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी भी चलेगा। तो उसमें सीक्वेंस आ गया 3 कॉपी सफिशिएंट है, वैट में 3 कॉपी था और एक्साइज में 7 कॉपी था, सर्विस इंडस्ट्री के लिए 2 कॉपी चाहिए। सो देयर आर रूल्स। अब टैली टैक्स वाइज रूल नहीं बदल सकता है, तो इन्होंने वही सीक्वेंस रखा हुआ है, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर एसएससी, ये सब वही रखा हुआ है, और जो भी आगे आएगा उसको एक्स्ट्रा कॉपी बोलेंगे वो। तो छोटा आएगा, आप टैली की साइट पे सर्च करोगे या 1-to-1 आप कम्युनिकेट कर लो, हम इसमें कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। ओके सर। अगर आपको चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो कि जो कॉपी आपको चाहिए ना, वही स्पेसिफिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको है ना, पेजेस टू प्रिंट, यहाँ पे देखो 1 और 2 आपको जो चाहिए ना उतना आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने किया रेंज में ऑल दिया। हाँ, तो ये बाय डिफॉल्ट में थोड़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये बाकी टैक्सेशन अब तक है मार्केट में। अभी बहुत सारे लोग मैं आपको दिखाऊं कि 10-10 साल का डेटा टैली प्राइम में लेके आ गए और उसको कभी चाहो तो ऐसे ओपन कर रहे हैं। सो इनके लिए प्रॉब्लम आएगा फिर। एनीवन, एनी एल्स? ओके, सो इसमें तो कोई क्वेरी नहीं है, बट सर आई थिंक जनक सर नहीं रहेंगे, दर्शन सर भी नहीं रहेंगे। ओके, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग के लिए मैंने स्पेसिफिकली आधा घंटा क्वेरीज के लिए लिया हुआ था। आई थिंक लोगों को समझ में आ गया है कि दोनों कब करने, कैसे करने। इसकी मैं सीनियरिटी बता देता हूँ कि कौन से बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट करोगे इसको, सिंपल से कि स्टेज बताते हो कि कौन से बिजनेस में आप डाल दो इसको। जहां जहां ऑर्डर बेस्ड आप दे रहे हो, जैसे कोई जैसे भी बोला ये मूर्ति का बनाने का है या कोई पेंटिंग वाला है, या बहुत बार ऐसे होता है कि हम फाउंड्रीज में है तो यहाँ पे एक ऑर्डर के ऊपर मुझे कॉस्टिंग निकालना होता है। ओके, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि कोई काम आता है पार्टी को नया, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको एक नंबर अलोकेट कर देते हैं। जैसे मान लो कि मुझे एक ऑर्डर आया कि i5 का पीसी बना के देना है डेल कंपनी का, और उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो मैंने उसको एक नाम दिया कि जॉब नंबर 21 और ऑब्लिक माय पार्टी नेम लिखा मैंने इनसे। तो जॉब नंबर 21 पूरी टैली में जहां जहां मुझे ट्रैक करना है, इन्वेंट्री में करो, स्टॉक में करो, मैन्युफैक्चरिंग में करो, कहीं पे भी करो, आपको रिपोर्ट मिलेगा ही। यहाँ पे इसके रिपोर्ट आप देखोगे जॉब कॉस्टिंग के, तो यहाँ देखो। हाँ सर बोलिए ना। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। ओके, थिंक उनका आवाज नहीं है। अब बोलिए सर, जब आपका साउंड का इशू आएगा ना, आप आराम से अनम्यूट करके बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो सी दिस रिपोर्ट हियर, नो एनी इन्वेंटरी इज इम्पैक्टिंग। मैंने कोई भी इन्वेंटरी को इम्पैक्ट नहीं करने दिया यहाँ पे। सो जैसे आपको कॉन्फ़िगर करना है, आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करोगे तो और इंटरेस्टिंग काम होगा।
इसमें एक सिंपल बता देता हूँ। मान लो एक आपको ट्रैकिंग ऑफ करना है, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रैकिंग था अपना, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, सॉरी यहाँ नहीं, ये डेटा में। तो मान लो आपका वो जॉब कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ जॉब, और अब आपको ट्रैकिंग नहीं चाहिए उसका, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखा था मैं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और आइटम कॉस्ट एनालिसिस। सो कोई ट्रैकिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप है ना इस ट्रैकिंग को क्लोज भी कर सकते हो। मान लो उस ट्रैकिंग को आपको क्लोज करना है तो आप इसको ट्रैकिंग को क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो, अब मान लो ये ऑर्डर मेरा खत्म हुआ और आगे जाके मुझे उसका डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, क्योंकि आगे मैं नया एंट्री करने जाऊंगा तो वापस ये ऑर्डर मेरे सामने आएगा। अब एज्यूम कर लो कि ये ऑर्डर पूरा हुआ मेरा और इतना मुझे प्रॉफिट हो गया और अभी बात खत्म हो गई उस ऑर्डर की, 100 क्वांटिटी के ऑर्डर की बात खत्म हो गई। सो लेट अस स्पेस सिलेक्ट बाय स्पेस बार, राइट साइड में देखो एक बटन दिखेगा यहाँ पे, क्लोज स्टॉक क्लोज कॉस्ट ट्रैक, अल्टर यस। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, सो ये क्या होगा, इस ऑर्डर को क्लोज कर लेगा, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या स्टेटस है मेरा, एक सेल ऑर्डर है जो ओपन दिख रही है। सो मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, क्लोज स्टॉक कॉस्ट ट्रैक, कंप्लीट, फिनिश। तो आगे से मैं कोई एंट्री करने जाऊं अभी तो मुझे वो कॉस्ट ट्रैकिंग डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। शायद लोगों को ये पता है कि नहीं पता नहीं कि वही भाई आप लोग सेल ऑर्डर को भी ऑफ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप सेल ऑर्डर पेंडिंग देखते हो, आउटस्टैंडिंग, ओके। तो आप किसी सेल ऑर्डर को क्लोज करना है तो राइट साइड में क्लोज सेल ऑर्डर करके भी आएगा, यू हैव टू सिलेक्ट इट एंड क्लोज इट, ओके। तो ऑर्डर बाद बाद में आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो हर बिल में आपको डिस्टर्ब करने वाला है। ओके, सो जस्ट मिनट, चैट बॉक्स में कुछ है यहाँ पे। What is Sir, there meaning is one of question. What is हाँ the meaning of cost in balance sheet? cost in balance sheet? What is meaning of cost in balance sheet? कहाँ पे है cost in balance sheet? Nilesh ji, if you can raise your hand, अगर आप अपना hand raise करें तो I'll just bring you into this. Just a moment, we have to. Nilesh ji, you can talk. आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बात कर सकते हैं आप। नमस्ते सर जी। हाँ नमस्ते, बोलिए ना। सर मैंने घनी वैकेंसी में ऐसा लिखा होता है रिक्वायरमेंट में कि बैलेंस शीट इन कॉस्ट एंड कॉस्ट, तो उसका क्या मतलब होता है? कहाँ पे लिखा होता है बैलेंस शीट इन? जो रिक्वायरमेंट होती है ना, क्वालिफिकेशन मांगते हैं, उसमें ऐसा लिखा होता है अकाउंट्स की वैकेंसी के लिए कि बैलेंस शीट इन कॉस्ट सेंटर है, ऐसा कुछ, हाँ इसलिए हाँ पूछ हाँ, रहा हूं। ओके ओके। सो सी व्हाट हैपेंस, कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब कॉस्ट सेंटर क्या होता है मैं आपको सिंपल पहले समझाता हूँ, तब जाके आप कॉस्ट वो समझोगे। कॉस्ट सेंटर मीन्स, एक एग्जांपल ले लो, आप चाहते हो कि 2000 रुपए आपका टेलीफोन बिल है और आप चाहते हो कि 2000 का टेलीफोन बिल भरना है, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। अब प्रॉब्लम क्या है कि टेलीफोन मेरे पास 10 है ऑफिस में, मोबाइल नंबर 5 है, लैंडलाइन 2 है और एक इंटरनेट कनेक्शन है। अब अगर मैं कॉस्ट सेंटर्स ऑन करता हूं तो मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे इतने इतने लाइक अ लेजर मैं उतना कॉस्ट सेंटर्स बना के रखूंगा, और लेजर एंट्री पास करते समय टेलीफोन अकाउंट डेबिट जैसे डालूंगा, वो नीचे लिस्ट पूछेगा कौन से कॉस्ट सेंटर का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब लोगों की डिमांड क्या होती है कि प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट उस कॉस्ट सेंटर के वाइज दिखाओ। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊं बैलेंस शीट में, मेरी बैलेंस शीट में चली जाऊं, फॉर एग्जांपल ये जय विजय वाला लेते हैं, और इसमें देखो मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट खोली। अब ये बैलेंस शीट तो सबकी आ गई, पूना, कोल्हापुर, सातारा, जितनी साइड से सबके आ गई मेरे पास। वो चाहते क्या है कि यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट दिखानी है। तो इसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप यहाँ पे कंट्रोल F12 कर सकते हो, अल्टर F12 नहीं,
एक तो एड ऑन आता है मार्केट में, फ्री एड ऑन है, टैली की तरफ से भी फ्री है और नेट पर भी मिलेगा, ये डाल के भी आपका होता है, आपने शायद वो पढ़ा होगा। अल्टर F12 करोगे तो आप सॉर्ट कर सकते हो, और कंट्रोल F12 करोगी तो यहाँ पे आप बोलो, मान लो कॉस्ट सेंटर बताता हूं मैं, कॉस्ट सेंटर नेम कंटेनिंग कोल्हापुर डालता हूं मैं, ठीक है, कोल्हापुर। अब वैसे बैलेंस शीट का कोई एंट्री हमने किया ही नहीं है, एक कैश का छोड़ के शायद। हाँ, यहाँ देखो, अब जो बैलेंस शीट मेरे सामने आई है विदाउट एड ऑन, इट इज इन डिफॉल्ट इन टैली। बहुत लोगों को अल्टर F12 पता है, कंट्रोल F12 पता ही नहीं है। कंट्रोल F12 क्या करता है, उसी वाउचर की समरी या वो रिपोर्ट दे देगा जिस वाउचर के अंदर आपने जो चॉइस किया हुआ है। मैंने क्या चॉइस किया है, उस वाउचर के अंदर जाओ जिसके अंदर मैंने कॉस्ट सेंटर कौन सा सिलेक्ट किया है, जिसका नाम, जिसके नाम के स्पेलिंग में कोल्हापुर रखा होगा, तो वो सभी मुझे कॉस्ट सेंटर पकड़ के, उसकी वाउचर पकड़ के उसकी बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो ये जो कैश का आ गया, ये जो सन्ड्री डेटर्स आ गए, ये सब कुछ जो दिख रहा है वो सिर्फ कोल्हापुर का है। अब देखोगे तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एंटर, यहाँ देखो 5 6, हाँ ओके, हमने कॉस्ट सेंटर्स ऑन नहीं किया, यहाँ पे हमने सिर्फ जॉब ऑन किया है, मैंने वो मिक्स नहीं किया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर ऑन करना होता है जो हमने ऑन नहीं किया है। ओके, तो हर एंट्री के ऊपर, सर के ऊपर यहाँ पे दिखेगा कि कॉस्ट सेंटर कौन सा ले रहे हो। तो आपने मान लो लिया कोल्हापुर, तो पूरा एंट्री सब कोल्हापुर के लिए चला जाएगा, तो अपने आप आपका काम होने वाला है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज बैलेंस शीट और कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। हमने कॉस्ट सेंटर्स ऑन नहीं किए, डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर्स को हमने सेट नहीं किया है। अगर उस टॉपिक को आपको सीखना है तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हेल्प की साइड में आपको डालना है यहाँ पे कॉस्ट सेंटर वाइज, या फिर कॉस्ट सेंटर डाल दो, उसकी पूरी हेल्प आने वाली है। और जो बाकी अरे संजय, राजेंद्र सर, सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ हाँ, आप अभी जय विजय दिखा रहे थे ना, तो उसकी दूसरी कंपनी जो कॉस्ट सेंटर वाली थी उसमें जरा दिखा दीजिए ना बैलेंस शीट, द अनदर कंपनी। हाँ नहीं, इसमें भी कॉस्ट सेंटर नहीं है, इसमें कॉस्ट ट्रैकिंग है मैडम। अच्छा, कॉस्ट सेंटर या सी, पहले तो मैं सबको यही बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कंफ्यूजन होने वाला था। कॉस्ट सेंटर इज नथिंग बट अ लेजर विथ सम कॉस्ट सेंटर्स। कॉस्ट ट्रैकिंग मीन्स कॉस्ट सेंटर नहीं है, कॉस्ट ट्रैकिंग वो आइटम को ट्रैक करेगा। जय विजय में आपने कॉस्ट सेंटर खोले थे, लेकिन जय विजय में जो हमने काम किया है ना, उसमें कहीं पे डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर ऑन नहीं किए। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, मान लो मुझे कैश में पे करना है और यहाँ पे मैं सैलरी लेता हूँ, तो पहले ही मुझे यहाँ पे डिफॉल्ट में पूछेगा टैली कि कॉस्ट सेंटर कहाँ है। करेक्ट। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, F11 में जाके यहाँ आपको बताना होता है कि डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर ऑन करो। ओके, डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर फॉर वाउचर, शायद मुझे लगता है ये यहाँ पे ERP में यहाँ पे है। ओके, प्राइम में, जस्ट मिनट, प्राइम में मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन कहाँ पे है। आई थिंक वाउचर टाइप में ही रहेगा वो, अल्टर वाउचर टाइप, मान लो सेल्स, तो यहाँ कहीं पे डिफॉल्ट कॉस्ट सेंटर एलोकेशन रहेगा कहीं पे। ओके, जस्ट मिनिट, पेमेंट मध्ये बघा वाउचर टाइप, पेमेंट मध्ये जस्ट मिनिट, वाउचर टाइप। सो तो जर तुम्ही ओपन कराल ना, तो तुम्हाला उपयोगी पडेल तिकडे, ऍडिशनल कॉस्ट नाही, हे परचेस आहे। कॉस्ट सेंटर है। हाँ नहीं, वो डिफॉल्ट वाला एक ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें तो पता चलेगा आपको ERP में। जस्ट मिनट, मैं आपको चाहूँ तो इसमें दिखा देता हूँ, प्राइम में आपको कहाँ है, हेल्प खोला था ना, उसमें देखो ना। कहाँ पे आप अभी हेल्प में गए थे ना इंटरनेट पे, उधर देखो ना, इसमें सर्च में मिलता है कैसे। डिफॉल्ट आएगा ना, ये है कॉस्ट सेंटर्स एक्चुअली, ये अलग अलग बोला है मोर डिटेल्स क्लिक करो ना F11 में। है, ऑलरेडी है, एनेबल्ड है। हाँ, ये राइट साइड में मोर डिटेल्स लिखा है, वो भी किया हुआ है क्या आपने? हाँ, नीचे कॉस्ट सेंटर क्लास से तो कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
नहीं, इनका जो डिमांड है, ERP 9 में था वो डिफॉल्ट हाँ बहुत सारे वाउचर खोलते तो ऊपर ही लिख के आ जाता है हाँ करेक्ट कौन सा कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। करेक्ट, वो वाला अगर आप लेते हो ना तो वो अकाउंटिंग नॉर्मल हो गया। अभी बहुत सारे बिल्डर लोग वही से काम करते हैं और बहुत सारे बिल्डर लोगों को वही कंफर्टेबल है, या फिर प्रोजेक्ट कॉस्टिंग करके वही यूज करते हैं। I want और to thank you Rajendra sir, it was really wonderful attending your sessions and सच्ची में ये मैपिंग वाला हमने दिमाग ही नहीं लगाया था कि गोडाउन को कॉस्ट सेंटर से मैप कर दीजिए। It was really worth attending, you know, वो बोलते हैं ना कि time invested in a productive knowledge creation. See, madam, Tally have that potential. We have to just explore it. Yes sir. और we have to thanks for Tally that they are taking these types of sessions. एंड अब ये सेशन शेयर करने के लिए इंटरेस्टिंग क्लाउड भी होता है। अभी देखो पूरे लोग एंड तक स्टिकअप है क्योंकि दे आर गेटिंग सम वैल्यू एडिशन फ्रॉम दैट टैली प्रोडक्ट। अब 20 साल से टैली यूज कर रहे हैं और कोई वैल्यू एडिशन नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन हो गई लोगों की। उनको लगता है कि क्या है इसमें नया, कुछ नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम थोड़ा कॉस्टिंग के ऊपर अंदर जाएंगे ना, टैली ऑडिट समंदर है, समंदर। लिटरली मैं आपको बताऊं ना, 2 जानबूझ के मैंने अलग किया। अगर मान लो दोनों एक साथ करता ना तो समझ में भी नहीं आता क्या चल रहा है। I was about to say, ये भी समझने के लिए थोड़ा हेवी हो रहा है, लेकिन we will be now referring your video, you know, ये अभी आ जाएगा ना CA कम्युनिटी। हाँ यस आएगा, में आ जाएगा तो we can refer। या और आपने देखा ना ये टैली नॉलेज सेशन की वीडियो पे आया था, देखा ना आपने? सर क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको? हाँ बोलिए ना। नीलेश हाँ सर बोलिए। सर ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ओके तो मैं क्या उसको 2-3 बार टाइम देखना चाहता हूँ फिर से अगेन। ओके तो कैसे मिल सकता है, कुछ मिल सकता है मुझे मेरे ईमेल पे कि कोई नहीं डोंट वरी, मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ कि ये ऐसी वीडियो आपको कहाँ मिलेगी। डोंट वरी, देखो पहले आपको यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे क्या टाइप करो, सीधे नॉलेज सेशन टाइप करो। टैली, बहुत लोगों को ये चैनल पता नहीं है तो मैं जानबूझ के बता रहा हूँ आपको। टैली KNOWLEDGE नॉलेज सेशन। और ये जो नॉलेज सेशन है ना, ये देखो यहाँ पे टैली नॉलेज सेशंस। अब इसमें क्या है कि जो सेशंस ये स्पेसिफिकली इसी टास्क में होते हैं, इसी सेशन में दिया है, इवेंट में दिया है टैली कंपनी ने, ये सभी यहाँ पे मिलने वाले हैं। मेरा भी यहाँ पे 2-3 वीडियोस इसके अंदर है। अभी ये भी वीडियो अपलोड होगा 2 दिन के बाद, आफ्टर वो सब सही उसको जगह वो सब करके। और आप कभी भी इसको ओपन करो, डाउनलोड करके रखो, आप कभी भी इसको देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत आगे जाना चाहता हूँ इसके बारे में टैली में, इसलिए बोल रहा हूँ। राजेंद्र सर वो क्या बोल रहे हैं कि F11 में हमने कॉस्ट सेंटर को एनेबल किया ना, हाँ बस तो उधर से ही होना चाहिए, बट पता नहीं वो क्यों नहीं। नहीं है वो होगा तभी आएगा क्या? नहीं मैं बताता हूँ वो कहाँ पे आता है। यहाँ पे देखो, ये जो वाउचर हम लेते हैं ना, तो इसकी राइट साइड में आता है। यहाँ पे 1 मिनट बताता हूँ, यहाँ पे राइट साइड में आता है। F12 में देखते हैं ना, पुणे F12 में क्या है? 1 मिनट आपको देखना है ना, जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट। इसमें कोई टाइम ज्यादा जाएगा नहीं। कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, हम क्रिएट करेंगे न्यू कॉस्ट सेंटर प्राइमरी, जॉब कॉस्टिंग ना बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और कोई लेजर हम देखते हैं जिसको हम मान लो ट्रांसपोर्टेशन है, इसको हमने कॉस्ट सेंटर ऑन किया, ठीक है। और अब ये जो एफ है एंट्री जो है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे F12 में जाके आपको यहाँ पे ऑन करना है कि कॉस्ट सेंटर सिलेक्शन। यहाँ देखो, अब ये एंट्री के अंदर डाल दिया इन्होंने। ये देखो कॉस्ट सेंटर क्लास दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप जाओगे तो राइट साइड में देखो आ गया, हाँ ऊपर ये आ गया देखो, बराबर। सो दैट वाज नॉट अ बिग चैलेंज। तो सर वो मतलब अभी क्या होता है, थोड़ा बोलते हैं ना, करना पड़ता है, रिहर्सल के कहाँ मिलेगा। नहीं ये सेशन ये मुझे पता है कहाँ पे है, लेकिन अभी भी क्या है कि बहुत सारे 80% पीपल्स आर स्टिल वर्किंग ऑन टैली ERP 9। तो ये देखो आपने कैसे फटाफट बोल दिया ये F11 में मिलेगा, तो ये आदत अभी थोड़ी हमें भी है अभी भी। तो मे भी इसको थोड़ा और टाइम जाएगा, 1 साल। वो तो ट्रबल्स आता ही है, नया प्रोडक्ट आएगा तभी। हाँ, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाउचर के अंदर सेव होता है कॉस्ट सेंटर। और इसके लिए अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन या कोई खर्चा लोगे
और इसको सेव करोगे तो दैट विल बी सर्च्ड ऑन बैलेंस शीट, और उसके लिए वो टीडीएल या जो एड ऑन मिलते हैं नेट पर आपको, वो उसके लिए बनाए गए कि ये वाला सर्च करके आपको दे देगा। अभी देखो ना बैलेंस शीट में वो कॉस्ट सेंटर वाला जो कंट्रोल F12 किया था। हाँ, हमने पीएनएल का एंट्री किया है, हमें पीएनएल पे ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जाओगे आप बराबर है। कॉस्ट सेंटर, और हाँ, यहाँ पे बोलोगे नेम कंटेनिंग न्यू, यहाँ देखो पढ़ लो। बराबर, ये लॉस हो गया ना, आई थिंक कहाँ पे गया वो, ये वाला। है ना, वो लेके नहीं आया 500 रुपया नहीं ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, ये मैंने डायरेक्ट वाला डाल दिया ना, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, आप इसको इनडायरेक्ट बोल दो। कितना माइन्यूट ध्यान रखना पड़ता है। हाँ से देखो अभी ये क्या हुआ कि उसका जो था मैंने शायद रिसीट कर दिया पेमेंट की जगह, यहाँ देखो सेल हो गया, सेल हो गया, कर रहे थे ना बराबर। हाँ देखो कुछ नहीं है, टैली ने इतना सुंदर बना के रखा है ना, देखो एक एंट्री में हो गया खत्म। तो आपको अभी क्या मिला कि न्यू नाम का जो कॉस्ट सेंटर था उसके रिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरीके से उनका वही क्यूरी था कि इसको कैसे हैंडल करें। तो बहुत सिंपल है, आप कंट्रोल F12 दबाओ, अल्ट्रा F12 मत दबाओ। और ये कंट्रोल F12 वाला की जो है ना, आपको सच में बताओ बहुत इंटरेस्टिंग है, डेबुक के ऊपर भी आप कर सकते हो। आपको ऐसा डेबुक चाहिए जो सिर्फ सीमेंट के आइटम के साथ है, जिसके अंदर सिर्फ सीमेंट आइटम है, ओके, तो वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल F12 से कर सकते हो। सॉरी डेबुक में से नहीं, जस्ट मिनट, मेन सिचुएशन यहाँ से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से, यहाँ पे आप ऐसे चाहिए ना, सीमेंट वाला ही आइटम चाहिए, कंट्रोल F12 कर लो यहाँ पे। ओके, मिड टाइम आपके पास किसी के पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ लो, सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर सेशन। सीमेंट यहाँ पे देखो, सो मैंने सिर्फ सीमेंट सर्च किया प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो उतनी परचेस और सेल की एंट्री मिलेगी या स्टॉक की एंट्री मिलेगी जिसमें सीमेंट इन्वॉल्व है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैली। एक्सप्लोर कंट्रोल F12 में बहुत सारा एक्सप्लोरेशन है। बहुत है, बहुत है, बहुत है। यस, और कोई, ओके अल्ट्रा F12, ओके ये हो गया, बराबर है, ठीक है। सो थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। सर संजय सर, मैं आपके पास हैंड ओवर कर रहा हूँ, ओवर टू यू, देयर आर नो क्वेश्चंस। Right. I think this session was quite interesting, or people are still there till the end. Yeah. Thank you, Vandana ma'am, and thank you, Rajendra sir, Yes. and thank you to all the participants for coming on this knowledge sharing session. And there will be few more sessions happening, okay, till the end of the September, and then there will be few more programs coming up. Okay, so with this we just conclude this session. Yes. Okay, thank you once again for this such a wonderful time and wonderful knowledge sharing session. Okay, thank you sir. All right, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir. Thank you, bye. Thank you.